Hi, good morning, my dear student. Today we are going to start class 11th history, chapter 5, Nomadic Empire. I have already taught you chapter 4 in my previous video. If you have seen, where you have found so many information about chapter 4, chapter 1, chapter 2, chapter 3 and chapter 4, that is the very important. Today we will start chapter 5, Nomadic Empire. This is very interesting chapter. In this chapter we are going to read about nomadic people, a powerful kingdom and a personality, a very controversial personality, Temujin. Some historians believe that he was a great conqueror and some historians believe that he was barbarian. Was he barbarian? Was he great conqueror? We will discuss in this chapter. But first you have to understand what is the theme of the nomadic empire. Nomad, it means one who wandered one place to other place. There are no stability in the nomadic culture. But the second word, that is empire, it means a very vast state that is unite. Empire show the stability. Nomadic, by word, they were wanderer, they were herders. They involve himself in the pastoralist industry. So, nomadic empire, that is very strange. कैसे नोमैडिक पीपुल ने एक साम्राज्य का निर्माण किया होगा। एक वो व्यक्ति जो कभी स्थायित्व जीवन नहीं जीता है, हमेशा वंडरर के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमता रहता है। आखिर ऐसी कौन सी परिस्थितियां बनी जिसमें उन्हें एक साम्राज्य की स्थापना करनी पड़ी। ये तिमोजिन कौन था और इतिहास में इसका क्या योगदान है? व्हाट इज द रोल ऑफ तिमोजिन इन हिस्ट्री? कैसे इतिहासकार उसे लेते हैं? हाउ कैन यू टेक द हिस्टोरियंस अबाउट देयर कैरेक्टर? वी विल डिस्कस all. So let's start our chapter, Nomadic Empire. The term nomadic empire can appear the contradictory. Nomads are arguably the quintessential wanderers, organized in family assemblies with a reality, undifferentiated economic life and the rudimentary system of the political organization. The term empire, on the other hand, carries with it sense of the material location, a stability derived from the complex social and economic structure, and the governance and extensive territorial dominion through an elaborated administrative system. But the juxtapositions on which these definitions are framed may be too the narrowly and historically conceived. They certainly collapse when we study some imperial formation constructed by nomadic groups. In the theme 4, we study state formation in the central Islamic land.
who organized lay in the Bedouins' nomadic traditions of the Arabian Peninsula. The chapter studies a different group of nomads, the Mongols of Central Asia, who established a transcontinental empire under the leadership of the Genghis Khan. Starting the European Asian during the 13th and 14th century, relative to the agrarian based imperial formation in China, the neighboring nomads of the Mongolia may have inhabited a number less complex social and economic world. But the Central Asian nomadic societies were not insulted islands that were impervious of the historical change. The society interacted had an impact on learned from the larger world of which they were very much a part. This chapter studies a manner in which the Mongol under the Genghis Khan adopted their traditional, social and the political custom to create a famous military machine and sophisticated method of the governance. The challenge is ruling a dominion spanning a millennia of people, economics and the confessional system meant that the Mongols could not simply impose their steppe traditions over their recently annexed territories. They innovated and they compromised in creating a nomadic empire that had a huge impact on the history of the European even as it changed the character and the composition of their own society forever. Nomadic people. When you imagine in your mind that nomadic peoples, their culture their culture was based on pastoralist industry. Now that time their culture is based on pastoralism. They were herders. Their life is not stable. But they established a very powerful empire. Even if they were very much aware of the economy system, they provide the great protection of the trade routes. They started so many trade tags. The territory is not limited in one continent, it was intercontinent. In the supervision of Genghis Khan, he conquered a very vast land. That is a very important thing. Chapter 5 Nomadic Empire, based on all these informations which we are going to study, which we will discuss one by one. If you will read this paragraph, you can easily understand that what is the theme of this chapter. This is important for your exam also. 5 to 6 marks क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ही आते हैं इस चैप्टर से. It means you have to read this chapter very seriously. There are some typical words you have to face in this chapter, but I will discuss all that. Don't worry. You have to learn it very carefully. Okay. The term nomadic empire. ये nomadic इसको ये वर्ड है, इसे घुमक्कड़ या यावर
या एक ऐसा शब्द जो स्थायित्व को न शो करता हो से संबंधित किया गया है। यायावर साम्राज्य की अवधारणा विरोधात्मक प्रतीत हो सकती है। ये भी तर्क दिया जा सकता है कि यायावर लोग मूलतः घुमक्कड़ होते हैं। यह भी कहा जा सकता है कि ये सापेक्षिक तौर पर एक अनिश्चित अविभेदित आर्थिक जीवन, इकोनॉमिक लाइफ और प्रारंभिक राजनीतिक संगठन के साथ परिवारों के समूह में संगठित होते हैं। छोटे छोटे परिवारों का ग्रुप एक साथ रहता है। दूसरी ओर द टर्म एम्पायर ऑन द अदर हैंड कैरीज विद द सेंस ऑफ अ मटेरियल लोकेशन। कहते हैं दूसरी ओर साम्राज्य शब्द भौतिक अवस्थितियों को दर्शाता है। साम्राज्य ने जटिल सामाजिक और आर्थिक ढांचों में स्थिरता प्रदान की और एक सुपरिष्कृत प्रशासनिक व्यवस्था के द्वारा एक व्यापक भूभागीय प्रदेश में सुचारू रूप से शासन प्रदान किया। लेकिन कई बार समाजशास्त्रियों की परिभाषाएं बहुत संकीर्ण व गैर ऐतिहासिक हो जाती है, क्योंकि वो जो डिफिनीशन सोशियोलॉजिस्ट देते हैं किसी कम्युनिटी, किसी ग्रुप के बारे में, वो कभी कभी बायस्ड हो जाती है। वो किसी बधे बधाए सोच में ढले होते हैं और ये परिभाषाएं तब त्रुटिपूर्ण सिद्ध हो जाती हैं, तब इसमें कमियां दिखाई देती हैं जब कहीं से ये बायस्ड होती हैं। उनके बारे में पहले से ही सोच लिया जाता है कि वो ऐसे हैं विदाउट स्टडी। तब जो इवोल्यूशन होता है पर्टिकुलर ग्रुप का, उसमें कुछ ड्रॉबैक्स आते हैं, कुछ त्रुटियां आती हैं, कुछ कमियां होती हैं। जब हम इन नोमैडिक ग्रुप्स के बारे में, उनके द्वारा निर्मित, उनके द्वारा जो लिखित जो डॉक्यूमेंट्स थे, राज्य संबंधी जो संगठन के लिए उन्होंने जो चीज़ें लिखवाई थी, उन्हें हम स्टडी करें तो हमें सिनेरियो ही बदलता हो दिखाई देता है। आई मीन टू से दैट whenever we will not open our mind particular group, particular community, we will start study on them. Our study cannot very clear and acceptable, because no doubt to say that if you have any कोई भी पूर्वाभास होगी उनके प्रति, कोई भी दुराग्रह होगा किसी ग्रुप के प्रति, तो हमें उनके प्रति कुछ न कुछ दुर्भावना आ जाएगी। और जब तक इतिहासकार के दिमाग में इस तरह की भावना आए, तब वो एक सही इतिहास न लिख सकता है, न बता सकता है। और ऐसा ही कुछ हुआ इस नोमैडिक एम्पायर के साम्राज्य के। चैप्टर 4 में हमने इन चीज़ों को पढ़ा। इस्लामी इलाकों में राज्य निर्माण के अध्ययन का जो अरब प्रायद्वीप की बद्दू या और परंपरा पर आधारित था, पूरा इस्लामिक एम्पायर हमने देखा। वो लोग भी नोमैड्स थे, बेडुइन्स थे, बद्दू थे। इस्लामिक कल्चर का डेवलपमेंट वहीं हो रहा है। ठीक उसी तरीके से चैप्टर 5 में हम नोमैडिक एम्पायर देख रहे हैं, जो एशिया में मंगोलिया, चाइना के कुछ क्षेत्रों पर इसका विकास मध्य एशिया के 13 to 4th सेंचुरी के बीच चंगेज खान के नेतृत्व में उभरता हुआ दिखाई देता है। चंगेज खान का साम्राज्य यूरोप और एशिया महाद्वीप तक विस्तृत था। कृषि पर आधारित चीन की साम्राज्यिक निर्माण व्यवस्था की तुलना में शायद मंगोलिया के जो नोमैडिक पीपुल्स थे, वो दीनहीन, जटिल जीवन से दूर एक सामाजिक जीवन और आर्थिक परिवेश में जीवन बिता रहे थे। लेकिन मध्य एशिया के यावर में जो मिडिल एशिया के जो नोमैडिक ग्रुप्स थे, वो अलग थलग द्वीप के निवासी नहीं थे जिन पर ऐतिहासिक परिवर्तनों का प्रभाव न पड़े। इन नोमैडिक एम्पायर पे भी जोग्राफिकल कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशंस का प्रभाव पड़ा। इन समाजों ने विशाल
विश्व के अनेक देशों में संपर्क रखा, उनके ऊपर अपना प्रभाव छोड़ा, उन्हें जीता और उनसे बहुत कुछ सीखा भी, जिससे वे एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में अपने को स्थापित कर सके। इस अध्याय में हमें यह भी पता चलता है कि मंगोलों ने चंगेज खान के नेतृत्व में किस प्रकार अपनी पारंपरिक, सामाजिक और राजनीतिक रीति रिवाजों को रूपांतरित कर एक भयानक, एक बहुत ताकतवर, एक पावरफुल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन और एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप किया। उस पद्धति का सूत्रपात किया जो एशिया और अफ्रीका जैसे महाद्वीप में तेजी से फैला। ये एक महत्वपूर्ण बात थी कि एक यायावर समुदाय इतने बड़े साम्राज्य की स्थापना कर रहा था। मंगोलों के सामने यह चुनौती थी कि वो केवल अपने स्टेपी परंपराओं के जरिए, जो हर्डर्स थे, जो पास्टलिस्ट थे, वो अपने कल्चर को अपने जीते हुए प्रदेशों पे, अपने विजित क्षेत्रों पे इम्पोज ना करें और भली प्रकार से अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाएं। यह वह वजह थी जिससे इस नए क्षेत्र में तरह तरह की लोक अर्थव्यवस्थाओं और धर्मों का सामना करना पड़ा। नोमैडिक पीपुल्स के एम्पायर में बहुत सारे धर्म, बहुत सारे ग्रुप्स, एथनिक ग्रुप्स और बहुत सारे लोग थे। यायावर साम्राज्य बनाने के लिए इन्हें नए कदम उठाने पड़े, समझौते भी करने पड़े और इन साम्राज्य को यूरेशिया के इतिहास में, यूरोप और एशिया के इतिहास में किस तरीके से डेवलप किया गया। मंगोलों का साम्राज्य यूरोप और एशिया के विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ था। इतने बड़े क्षेत्र पे, इंटर कॉन्टिनेंट पे उन्होंने इस साम्राज्य की स्थापना की। चंगेज खान का प्रभाव अफ्रीका पे पड़ा या नहीं, इसमें विद्वानों में बड़ा मतभेद है, लेकिन उनके व्यापार उस क्षेत्र से जुड़े हुए थे। कहता है इसके बाद इन चीज़ों को जैसे ही पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो आपको समझ में आएगा कि हमें क्या पढ़ना है। मंगोलों के इतिहास पे जो भी बातें लिखी गई वो यूरोपियंस के द्वारा लिखी गई। यूरोपियंस वॉज कॉन्कर्ड बाय चंगेज खान, और चंगेज खान इस क्षेत्र को जीता, आक्रांत किया, बहुत लोगों की हत्याएं भी की गईं, जिससे उसके बारे में यूरोपियन हिस्टोरियन ने खूब अनर्गल बातें लिखी हैं। लेकिन बाद के दौर में जब इन पे काम हुआ, बहुत सारे जो ट्रेवलर्स थे उनके अकाउंट्स को पढ़ा गया, जो व्यापारिक गतिविधियों में डॉक्यूमेंट्स मंगोलों ने लिखवाए थे उनके आधार पे, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को देख के, लेखकों की जो जीवनियां थी उनके आधार पे पूरा मंगोलों का इतिहास जानने का प्रयास किया गया। और तब उन्हें पता चला कि मंगोल वास्तव में वैसा नहीं थे जैसा यूरोपियन ने बता रहे थे। वो सिर्फ बारबेरियंस नहीं थे, उन्होंने एक बड़े साम्राज्य का निर्माण किया था। लेखकों की यायावर की जीवनियां, सूचनाएं अज्ञात पूर्वाग्रहों से ग्रस्त पहले दिखाई देते थे, लेकिन बाद में जब इस पे काम हुआ तो यूरोपियों की ये सोच, यूरेशिया के शहरों में उपजे इन निंदापूर्ण लेख जो उनके बारे में लिखे गए थे कि मंगोलों को स्टेपी लुटेरा बताकर हाशिए पर डाल दिए थे, इस सबसे मंगोलों की तस्वीर पहले से कहीं ज्यादा जटिल हो गई। और अब इन्हें समझने के लिए इतिहासकारों ने काफी काम किया। मंगोलों पर सबसे बहुमूल्य
सबसे कीमती, सबसे इम्पोर्टेंट वर्क किया 18वीं सदी में, 18th-19th सेंचुरी में मंगोलों पे काम हुआ, रिसर्च वर्क हुए। विद्वानों ने इस काल में किया जब जार शासक मध्य एशियाई क्षेत्रों में अपनी शक्ति को सुदृढ़ कर रहे थे। जार रूस के शासक थे, जब वो लोग अपनी शक्ति बढ़ा रहे थे, उसी समय रूसी इतिहासकारों ने मंगोलों के इतिहास का अध्ययन किया। ये कार्य अपने वैसी वातावरण में हुए जो प्रायः सर्वेक्षण टिप्पणियों के रूप में मिलते हैं। इन्हें यात्रियों, सैनिक, व्यापारियों, पुराविदों ने तैयार किया था। प्रारंभिक 20th सेंचुरी में इस क्षेत्र में सोवियत गणराज्य का विस्तार के उपरांत नवीन सामाजिक संबंधों की प्रकृति को निर्धारित करती है। चंगेज खान के उभरते हुए मंगोल साम्राज्य को मानव विकास की उस संक्रमण व्यवस्था के दायरे में रखा गया जिसमें जनजातीय उत्पादन प्रणाली से सामंती उत्पादन प्रणाली की ओर परिवर्तन हो रहा था। अर्ली टू मॉडर्न की तरफ मूव कर रहे थे। ये परिवर्तन सापेक्षिक रूप से एक वर्ग विहीन सामाजिक व्यवस्था से उस सामाजिक व्यवस्था की ओर हुआ जिसमें कृषि, भूस्वामी, लॉर्ड के बीच एक विशाल अंतर पाया गया। इतिहास की ऐसी निर्धारित व्याख्या का अनुसरण करने के लिए मंगोल भाषाओं, उनके समाज और संस्कृति पर अति उत्तम शोध बोरिस याकोवालोविच व्लादिमिर्स्टाव, ये रशियन हिस्टोरियन है, इस पर काफ़ी काम किया। मैं एक बार फिर उनका नाम ले रहा हूँ, बोरिस याकोवालोविच व्लादिमिर्स्टाव जैसे विद्वानों ने इस पर खूब काम किया। इसके अलावा कुछ और विद्वान जैसे वेस्ली व्लादिमिरोविच बार्टोल्ड ने सोवियत विचारधारा का समर्थन नहीं किया। एक ऐसे समय में जब स्टालिन के शासनकाल में आंचलिक राष्ट्रवाद के कारण घबराहट व्याप्त हो रही थी, तब बार्टोल्ड के द्वारा चंगेज खान और उसके वंशजों के अधीन मंगोलों के जीवन और उसके उपलब्धियों के सकारात्मक और सहानुभूतिपूर्वक विवेचना की जा रही थी। बार्टोल्ड की रचनाओं ने प्रसार पर कठोरता पर प्रतिबंध लगा दिया। बार्टोल्ड ने बताया कि किस तरीके से मंगोलों ने अपने साम्राज्य का विस्तार बड़े क्षेत्रों पे किया। ये तो हुआ एक छोटा सा अध्ययन, जिसके बारे में हमने मंगोलों के बारे में कुछ चीज़ों को पढ़ा, कुछ चीज़ों को समझा। अब मंगोलों के महत्वपूर्ण शासक तेमोचिन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले आप ये जो ब्लू कलर की लाइंस दी गई हैं, आप इन्हें ज़रूर पढ़ें, इन्हें समझें, इन्हें देखें। लास्ट पैराग्राफ में एक्सप्लेन करके आपका इंट्रोडक्शन शुरू करता हूँ। कहता है कि द मंगोल्स आर क्वाइट डिफरेंट एंड द इटालियन एंड लैटिन वर्जन्स ऑफ द मार्को पोलोस ट्रेवलर्स ऑफ द मंगोल कोड डू नॉट मैच। जो बातें यूरोपियन हिस्टोरियन मंगोलों के बारे में कह रहे थे, मार्को पोलो जो मंगोल दरबार में, मंगोल कोर्ट में आया था, उसने जो मंगोलों के बारे में लिखा था वो पूरी तरीके से एकदम विपरीत दिख रही थी। कहते हैं कि जो प्राचीन विवरण मंगोल काल के उन न्यूटोबियन मंगोलों का गोपनीय इतिहास जो मंगोलों और चीनी भाषा में मिलते हैं, एक दूसरे से अलग है। इसी तरह मार्को पोलो द्वारा मंगोल राज दरबार का यात्रा वृत्तांत जो इटालवी और लैटिन भाषा में उपलब्ध है, वे एक दूसरे से मेल नहीं खाते। चूँकि मंगोलों ने अपने बारे में स्वयं बहुत कम साहित्य रचा और विदेशी संस्कृतियों के वातावरण में रहने वाले विद्वानों ने उनके बारे में ज़्यादातर लिखा, अतः इतिहासकारों को उन विदेशी मूल रचनाओं में जिन वाक्यांशों का प्रयोग किया हुआ है, उनका मंगोल भाषा के करीबी अर्थ निकालने के लिए बड़ा डिफ़िकल्ट महसूस होता है। इगोर द रेखिविल्ड्स और गेरहार्ड डोरफर, जिन्होंने ऐसी मंगोल और तुर्की शब्दावलियों पे काम किया, वोकैबुलरी पे काम किया, वो कैब थे मंगोल जो वोकैब्स, उस पर काफ़ी काम किया उन लोगों ने।
जैसे विद्वान की रचनाएं मध्य एशिया के यायावरों के इतिहास को पढ़ने में कठिनाइयों को उजागर करती हैं। इस अध्याय में चंगेज खान और मंगोलों के विश्वव्यापी साम्राज्य के बारे में, उनके अविश्वसनीय उपलब्धि के बावजूद उद्यमी विद्वान अनुसंधानकर्ताओं को अभी तक बहुत कुछ करना मंगोलों के इतिहास बाकी है। मंगोलों का इतिहास अत्यंत रहस्य से भरा हुआ है। बहुत सारी बातें आज भी नहीं जानी गई। मंगोलों का साम्राज्य इतने बड़े क्षेत्र पे था, यूरोप और एशिया के काफ़ी बड़े क्षेत्र पे चंगेज और उसके सक्सेसर्स ने राज्य की स्थापना की थी। और उनके इतिहास अत्यंत संक्षिप्त कुछ शब्दों में है। फिलहाल चैप्टर 4 में हम इसके बारे में डिटेल करेंगे। चलिए देखते हैं इंट्रोडक्शन। In the early decades of the 13th century, the great empire of the Europe-Asian continent realized the dangers posed to them by the arrival of a new political power in the steppes of Central Asia. Gangezi Khan 1227 united the Mongol people. Gangezi Khan's political vision, however, went far beyond the creation of the Confederacy of Mongol tribes in the steppe of Central Asia. He had mandate from God to rule the world, even though his own lifetime was spent consolidating his hold over the Mongol tribes, leading and directing campaign into adjoining area of the North China, Transoxiana, Afghanistan, Eastern Iran, and Russian steppe. His descendants traveled further or failed to fulfill Gangezi Khan's vision and create a larger empire the world had ever seen. My dear student, if you will see this map, then you can easily understand about that Mongolian Empire. मंगोलियन एम्पायर की बाउंड्री को देखिए। यूरोप में काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, सेंट्रल एशिया का क्षेत्र है। और इतने बड़े क्षेत्र पे इस साम्राज्य का विकास आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ये बड़ा साम्राज्य उन लोगों के द्वारा बनाया गया जो बारबेरियंस थे। ये बड़ा साम्राज्य उन लोगों के द्वारा बनाया गया जो वाइल्ड थे, जो पास्टलिस्ट थे, जो हर्डर्स थे। ये सारी बातें यूरोपियन इतिहासकार कह रहे थे, लेकिन आज के स्टडी के आधार पे उन पुरानी मान्यताओं, उन पुरानी विचारधाराओं को स्वीकार करना संभव नहीं। क्या इतने बड़े साम्राज्य के निर्माता केवल असभ्य और बर्बर रहे होंगे? क्या इतने बड़े साम्राज्य के निर्माता केवल हर्डर्स रहे होंगे? शायद नहीं। इस तरीके से आप इन चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे तो आपको आपके पर्सनल एनालिसिस से भी ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आई मीन टू से दैट इफ यू विल रीड दिस चैप्टर minutely, then you can easily understand about that what author want to inform you, why we read this chapter, हम क्यों पढ़ें, हम क्यों पढ़ रहे हैं इस चैप्टर को। ये सारी बातें आपको समझ में आने लगेंगी। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर बात करेंगे इस चैप्टर के आगे, इन चैप्टर में उन महत्वपूर्ण चीज़ों को
इसके इंट्रोडक्शंस को, चंगेज़ खान की लाइफ को, इन सारी चीज़ों को। लेकिन आपको आसानी से इसको समझना पड़ेगा, नोमैडिक एम्पायर को। टाइटल नोमैडिक एम्पायर, और अगर आप इसे समझ गए तो पूरा चैप्टर आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। If you will understand the theme of this chapter, then in future you have no confusion about any topic in this chapter. No doubt this chapter is very important. Topic is also important. Okay, goodbye and take care.